So now, ladies and gentlemen, हर चीज़ अच्छी लगी, हर शख्स अच्छा लगा, हर चीज़ अच्छी लगी, हर शख्स अच्छा लगा। आप आए महफिल में, शहर भी अच्छा लगा, अब आप यहाँ चले आए। Ladies and gentlemen, the rock star of the Murshid School of Nursing, may I invite to Sir Akbar Hussain to come on stage and share a few words. First of all, I understand that every students are sitting here. They must be very much tired because it's a very long, but it's too entertaining and too interesting program. So actually, the program credit goes to basically to the Mr. Hasib and Miss Mahvish. Please big clap for them. Actually, we had already organized such kind of program, but not in that manner bigger and not that manner bigger and amazing, which we had today. And the program about mental health, I feel that all of us are suffering from that in some extent. When we are the student, when we are the parents, when we are the daughter and son, when we are the friends, we all are suffering in some extent, from this disease of mental illness. Actually, I was reading articles regarding mental health. I was very surprised. I came to know that the 24% of adult and 19% of the children and 46% of the teenager, they are suffering from mental illness in the world. And in Pakistan, 25 million people needs psychiatric assistant, and this is a very big number. And today you perform here, actually you portray the real meaning of the comedy. The way Mr. Imran, Anil and Abdul Sattar and all of the students, do you tell us the real meaning of comedy? The real meaning of comedy, with the laughter, you try to give the message. Actually, your performance was not only the laughter, that was a serious message in it, which needs to be addressed. Actually, the way they show that in the different tableau and different role play, they show that how people are suffering from this mental illness due to some reasons. And you have given the message of sympathy and empathy in it. I think you should know the difference between these two meaning, the sympathy and empathy. Sympathy means when you feel sorry for someone, when you feel that okay, someone is trouble. But empathy means when you put yourself into someone's shoes, when you feel like that. So when you try to perform different roles, you feel like that. So this is the empathetically you define this kind of issues which is circulating in our surroundings, in our family, even with ourselves as well. And this is the best way to address, and I would say that inshallah in the future we will keep going on this and with this manner. And this credit goes to again your teacher, your classmate, students, whoever had participated in it. And I'm very thankful to the media who has been coverage since the morning, and it's outstanding. Please clap for them, Mr. Ramzan Bhai, because he has been working for this as well. And I know that you are feeling very tired, but I think we are going to end this program after two or three performances. I don't know, 2 performances after that. आप लोगों ने इतनी हिम्मत की है, so please more and more. And thank you very much from my side and wish you best of luck. Thank you. अभी मैं दावत दूंगी मिस ज़ैरिश को और मिस रिमशा को, वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं किससे कहूँ जाके अपना हाल दिल, मैं किससे कहूँ जाके अपना हाल दिल, मेरा दुख तो मेरी माँ को भी नहीं पता। तो आप लोगों ने जो यहाँ पे क्रिएट अपनी वो सारी जो भी कुछ परफॉर्म किया, उसमें जो आप लोगों ने किया वो बहुत दुखी सिचुएशंस अपनी बताई, और उसको बहुत जो वाकई ये बहुत सीरियस था, लेकिन आप लोगों ने इसको जो काफ़ी एंटरटेन किया, वो सबसे पॉजिटिव बात थी। और जो सबसे बेस्ट बात थी वो ये थी कि आपका पोस्चर, सबसे पहले तो आपका पोस्चर आपको प्रेजेंट करता है कि आप आखिर करने क्या वाले हो।
आपके गेस्ट को बताता है कि आप लोगों का पर्पस क्या है। तो आप लोगों के पोस्टर में वो हर चीज़ समझ आ रही है कि जो एक प्रोफेशनली एक किसी भी क्या कहते हैं किसी भी गैदरिंग में होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। सेकंड पॉइंट मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगा, जो आपका ग्रुप और टीम वर्क था वो बहुत अच्छा था। आप सब ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया और हर एक के ग्रुप में क्या क्या पार्टिसिपेट करके उसके जो एक्ट था उसको बेटर करने की कोशिश की। तो ये बहुत अच्छा था, पॉजिटिव पॉइंट थे आपके। और ये था कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा था कि ग्रुप जो है वो पहले से प्रिपेयर नहीं थे, वो होना चाहिए था, वो थोड़ी सी लैकिंग थी। अदरवाइज इट इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू। First of all, I congratulate Miss Mavish and Sir Hasif for such beautiful performances of these students. अगर आपको याद हो, जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली थी मैंने तभी बोला था आप सब जीनियस हो और आप लोग हंस रहे थे। लेकिन आज जो है आपने अपनी परफॉर्मेंस के साथ जो है ये प्रूफ किया है कि वाकई आप सब जो है जीनियस हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरेटिकल जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीचर्स के फेवरेट होते हैं, लेकिन कुछ के अंदर ये टैलेंट भी होता है कि अपनी परफॉर्मेंस के साथ सामने आते हैं। तो आपके लिए मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जो है ज़मीन पर बैठने वालों को जब जो सामने आए उन्होंने आसमान दिखाया है, उन्होंने हकीकत बताई है सब। और मैं अप्रिशिएट कुछ स्टूडेंट्स को बाय नेम करना चाहती हूँ, मिस्टर सत्तार, मिस्टर अनिल, उनके परफॉर्मेंस के लिए, मिस शांजा उनके वोकल के लिए। मैं बहुत खुश हुई शांजा को देखकर, उसके वोकल से, उसकी परफॉर्मेंस से, उसकी स्पीकिंग पावर से कि बहुत अच्छा बोलती है। तो गॉड ब्लेस यू, अल्लाह पाक आपको हर कदम पर कामयाबी अता करे और आप ऐसे ही कामयाब होते रहे, आमीन। अजीब सा जानवर है, खाता रहता है खाता रहता है, समझ ही नहीं आ रहा क्यों खाता रहता है। ये बात गलत है। प्लीज ज्वाइन मी in welcoming our second last group. They are performing and their topic is eating disorder. I'm inviting Bilal and Yusuf. Please come on the stage and play their role. अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जाग जाओ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईटिंग डिसऑर्डर के हवाले से। ईटिंग डिसऑर्डर ये होता है कि जिसमें बंदे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है? तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और सब्र कीजिए। बाहर जा रहा हूँ खाना खाने। अच्छा, किसके साथ जा रहे हो? दोस्तों के साथ। तुम्हें कोई मसला? नहीं, मुझे तो कोई भी नहीं है। मैंने खाना तो बनाया था आपके लिए। बस मैं उनके साथ खा रहा हूँ। ठीक हो? कहाँ खाए थे? बस यार थोड़ा मसरूफ था मैं। आजकल नज़र नहीं आ रहे हो। आप लोग भी नज़र नहीं आ रहे। बस क्या करे, थोड़ी मसरूफियत है। और सुना खैरियत हो? जी, क्या ऑर्डर करे? कुछ भी। ये तो आप ही से पूछा। हाँ नहीं तो कार है पहले से। वेटर, एक्सक्यूज मी वेटर। जी मेरे लिए तो एक कौरमा लेके आना और एक जिंगर बर्गर लेके आना। इस बार तुम देख लो इसमें कढ़ाई लेके आना और इसके लिए सारे जो भी हो रहे जोर से बोलो थोड़ा जो जल्दी लाना अभी तैयार नहीं है। 30 मिनट यार, असफर ये क्या खाता रहता है भाई, इसको कोई और काम नहीं है। कब से आए हो? खाता ही रहता हाँ ना, भूखा रहता है हर टाइम, बस लगा रहता है ये। वेटर जोर से बोले, जोर से। तैयार है या नहीं? अभी 20 मिनट लगेंगे। जल्दी करो और सब कुछ खा जाएगा। पापड़ रवा लेकर पापड़ तेरी क्या अजवाना बोतल में रवा अपन बोतल में रवा तेज बोले, तेज बात बोतल लिया भाई इसकी घर लेके जाएंगे।
फिलहाल बस करो, कितना खाएगा यार? थोड़ा प्लेट तो आपने खाली कर दी, ये भी दे दो। फिलहाल ये भी खा लो बस कर यार, ये भी चलिए सर बस बेटा बेटा ये ले जाओ, ताली निकाल अभी तो बाहर से खाना खा कर आए ना। फिर से भूख लगी है। आपके लिए बताइए। यार बहुत ज्यादा भूख लगी है यार मुझे। पर्दे के पीछे बेगम तो खाने को ले आओ, बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्या है, पूरी रात पूरा दिन खाते रहते हो, कोई काम नहीं है आपको? तुम अभी ले आओ, फिर कल देखेंगे। मुझे लगता है आपको ना कोई डिग्री दे, सुबह चलते डॉक्टर को बता ठीक है, अभी ले आओ। अभी कुछ भी नहीं है घर पे, राशन। ठीक है, अभी जो भी है बना कर ले आओ। ये मेरे हस्बैंड है, इसको ना पता नहीं क्या हो गया, पूरी रात खाता ही रहता है। इसको मुझे इतनी भूख लगती है कि कुछ बता नहीं सकती। क्या बस चलेगा तो मुझे और मेरे बच्चों को भी खा जाए। अच्छा, मतलब हर टाइम खाता रहता है? आप कुछ भी दो, इतने का हमारे जो बर्तन धोने के साबुन है वो भी खा के चला गया। इतना भूखा है? इतना भूखा है। और डॉक्टर जी, मैंने ना बर्तन लिया था, मैंने सोचा कि घर के काम में आएगा, लेकिन ये उसने बेच के खा गया है। अच्छा, ये तो डिसऑर्डर है, इसको हम मेडिकल टर्म में ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब तो रात खाने की बीमारी जो होती है ना, वही बीमारी है इसको। अच्छा, फिलहाल आपको कोई और मसला तो नहीं है, स्ट्रेस वगैरह या डिप्रेशन या घर की वजह से कोई मुश्किलात? ये जो सबसे बड़ा मसला है वो मेरा ये है। मैंने क्या किया है? क्या किया है? कभी काम पर टाइम पे खाना ही नहीं देते आप। आप टाइम पे लाओ तो मैं दूँ ना, पूरा दिन जो लाते हो तो खाते रहते हो। तो मैं कहा लाता हूँ खाने के लिए, तो आप तैयार करके दो, मैं बाहर नहीं जाऊँगा खाना। इतना भी तो नहीं खाया ना, जब राक्षस पाल के रखा है मैंने घर में। तो क्या करें, जब मुझे भूख लगती है मैं खाता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, इसको बता, इतना कौन खाता है? मैं तो भीख मांग रहा हूँ। इंसान खाता है, इंसान खाता है। मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब कचे चहाना। Now I am inviting our last group. Their topic is phobia. I am inviting Mr. Kalimullah and Manzoor. Please perform the play role on the stage. Please come. Today we are today our topic is phobia. हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है फोबिया, जो कि हम लोग उस पे रोल प्ले करने वाले हैं। पहले आप उसको एक्ट को देखें, उसके बाद हम लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं। Role play on phobias. Scene 1. Nyctophobia. Play, act. ओए ओए जवाब ऐसे नहीं कर यार, मैं डर रहा है। ओ जवाब लाइट ऑन कर। जवाब क्या हुआ? डर लगा यार। खैरियत है? क्या हुआ? मैं तो यही अंधेरे से डर लगता है यार मुझे अकेले में। कहाँ गए यार? तो पास ही था, यहीं पर था, मैं बाहर था। नहीं जाना था यार। तबीयत ठीक है? नहीं मुझे डर लगता है। बैठ। क्या हुआ? मेरे सांस फूल गई यार, पता नहीं, डर लग रहा था। Scene 2. Acrophobia. Play, act. दोस्तों, हम लोग आज प्रोग्राम बना रहे हैं, किसी हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। नहीं यार, मैं नहीं जा रहा, मेरा मूड नहीं।
क्या यार, चल तो हाइकिंग में बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। हाँ थोड़ा टाइम पास भी हो जाएंगे। यार कोई बात नहीं, क्यों मूड नहीं है, वजह क्या है? असल में बात ये है कि मुझे ऊंचाई पर डर लगता है यार। यार तो बच्चों वाली बातें करना, कुछ नहीं होता डर। मुझे डर लगता है यार। मैं साथ हूँ ना, हम लोग साथ हैं, हम लोग साथ जाएंगे, साथ वापस आएंगे, इसमें कोई मसला थोड़ी होता है। यार मुझे डर रहा है ना। सर हम भाई आपके साथ होंगे, अब कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ थोड़ा चलो तो सही, enjoyment थोड़ा होगा, चले जाएंगे। आप इन्वायरमेंट को देखोगे, बहुत एंजॉयमेंट महसूस करोगे। नहीं यार मुझे डर लगता है। चल कोई बात नहीं है, चल ले यार, कोई बड़ी बात नहीं है ये वाली। यार यार तू आप- बोल रहा है उसको कुछ। हाँ चल लेते हैं ना, हम लोग एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे, तो उस वजह से हम लोग साथ हैं, हम लोग कोई मसला नहीं होगा। मैं हूँ ना, हम लोग हैं ना साथ। यार तुम लोग इतनी इज्जत करते हैं, पर मैं ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाऊंगा। चलो जी, डर लगता है। ठीक है ठीक है। आ जाओ यार, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता यार, डरने की बात नहीं है। अबे कुछ भी नहीं होता यार। ये सीरियस बात नहीं है, इतनी ऊपर थोड़ी है तो देख। आ जाओ, कोई बात नहीं है यार। ऊंचाई बड़ी है यार। कुछ भी नहीं नहीं है, नहीं 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 डरो नहीं यार। ये डर लगता है यार। अबे कुछ नहीं होता यार, डर नहीं 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 यार। नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है यार। अबे कुछ भी नहीं होता यार। नहीं अबे यार डर कुछ भी नहीं होता है। हाँ, डर यार, अबे कुछ भी नहीं होता है। Scene 3. Social phobia. Play act. In crowd. यार इतने सारे लोग, मुझे तो चक्कर आने लगे। ऐसा करता हूँ, बैठ जाता हूँ यहाँ पे। हाँ यहीं पे बैठ जाओ। अरे यार चक्कर क्यों आ रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? Scene 4. Going to hospital. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, रिसेंटली हम गए थे हाइकिंग के लिए दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे हम जैसे ही वहाँ पे ऊंचाई पे चढ़ने लगे तो मुझे जो है ना डर लगने लगा, अजीब सा फील हुआ। और जब मैं घर में होता हूँ और लाइट चली जाती है ना वहाँ पे, और अंदर ही मुझे डर सा लगता है। आपको कैसे फील होता है वहाँ पर? रिसेंटली जब मैं मार्केट में गया था ना तो वहाँ पे मुझे डर लगने लगा, मेरी सांस जो है वो मेरी सांस फूलने लगी। जब आप वहाँ गए तो आपको और क्या फील हो रहा था? मेरी सांस फूलने लगी, मुझे चक्कर आने लगे। ये आपको कब पता चला कि ये मेरे साथ हो रहे हैं, मैं इन चीज़ों से डर लगने लगा? बस कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली जो मेडिकल टर्म में हम फोबिया कहते हैं, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डर की बीमारी, ये एंजाइटी का ही टाइप है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म हैं। इसमें जो है बेज़ाहिरी तौर पे ये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो ज़िंदगी में बड़ा असर रखती है। इसमें ये होता है कि आप कहीं बंद कमरे में जा नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि कोई आप किसी लिफ्ट में नहीं जा सकेंगे। दूसरी बात, आप लोगों में या भीड़ में कहीं मार्केट वगैरह काम से कहीं जा नहीं सकते। इसमें जो है, इससे आपकी ज़िंदगी में, आपके काम में बहुत ही रुकावटें आएँगी। सर भारी होना, चक्कर आना। दूसरा ये है कि कोई चीज़ गले के अंदर किसी चीज़ का फँस जाना, साँस लेने में मुश्किल आना, दिल की धड़कन तेज़, जिस्म में कपकपाहट और माथे पे पसीना आना। बेसिकली जो वजूहात ये होती हैं कि कोई फैमिली में कोई इवेंट हुआ हो उनके साथ, जो बचपन में कोई बड़ा मसला बन जाता है आगे जाके, या कोई इनके साथ
को ये ऐसा बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, वो जाके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। इसके ट्रीटमेंट जो हैं 2 हैं, जैसे एक है बगैर थेरापी दवाई के, जिसे साइकोथेरापी कहते हैं, एक है दवाई मेडिसिन पे जो है। बगैर थेरापी जो बगैर दवाई की जो साइकोथेरापी कहते हैं, उसके कहते हैं PMR, प्रोग्रेस मसल रिलैक्सेशन। इसमें जो है ब्रीथिंग रिलैक्सेशन, इसमें हम एक लिस्ट बनाते हैं जिस चीज़ से उनको डर लगता है, वो लिस्ट बाय लिस्ट उसको स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं, उसकी थेरापी देते हैं। और जब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी रिलैक्सेशन थेरापी देते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों का डर जो है वो ख़त्म हो जाए। बेसिकली फोबिया जो है, सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो ये डर की बीमारी होती है। ये ये जो अभी जो कॉमन है, आम लोगों में भी होती है, हमारे इर्द गिर्द लोगों में होते हैं, लेकिन हम लोगों का इन चीज़ों का पता नहीं होता। हमारे फ्रेंड दोस्तों के साथ भी होती हैं, लेकिन हम लोग इस पर थोड़ा गौर नहीं करते। ये बीमारी अगर शदीद हो जाती है तो ये बहुत ज़िंदगी में असर रखती है। जैसे कि आप काम पर जाते हैं तो आपके काम में बहुत रुकावटें आती हैं। अगर आपकी ऑफिस कोई 2nd फ्लोर पे है या 3rd फ्लोर पे है, तो आप लिफ्ट से भी जब जाते हैं तो आपको बहुत सा डर लगता है, और ऊंचाई पे भी ज़्यादा है। बेसिकली इसके टाइप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने जो चुना है वो 3 टाइप हैं: एक्रोफोबिया, निक्टोफोबिया और सोशल फोबिया। बेसिकली हम लोगों ने ये 3 टॉपिक जो है हम लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं। इनके ट्रीटमेंट जो है वो 2 होते हैं, ड्रग भी मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो है साइकोथेरापी भी देते हैं। इसमें जो है PMR कहते हैं, जो प्रोग्रेस मसल रिलैक्सेशन। इसमें जो है हम लोग एक डिजीज़ की जो है लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके मसल रिलैक्सेशन करवाते हैं। जब भी उस इवेंट का ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो उस हिसाब से हम लोग उनकी रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। I would like to invite one of the best teachers, Sir Imtiaz, come on stage. तो दुख हो रहा है कि मैं बीच में आपको एपिडेमियोलॉजिस्टिक में एंड कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि जो मुझसे बात आएंगे वो मुझसे अच्छे ही होंगे, और अच्छे ही आते हैं जो बाद में आते हैं। और उसको अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा रोल जो है टीचर्स को बेहतर से बेहतर, और टीचर्स को पढ़ने के लिए जो मजबूर करते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो टोंट मार के नहीं, वो क्वेश्चंस करते हैं कि भाई आप टीचर क्लास लेने आ गया है, तो अगर आप टीचर चाहते हैं कि टीचर आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाए, तो अच्छे से अच्छा वो तब पढ़ाएगा जब आप उसको पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। टीचर इज़ आल्सो अ लर्नर। वो कोई PhD होल्डर्स या सारी किताबों का रट्टा लगाया हुआ एक लाइब्रेरी नहीं होता है। वो खुद भी कुछ ना कुछ पढ़ के आता है जब आपको पढ़ाने आता है। तो जो और टीचर्स तब पढ़ेगा जब आप खुद स्टूडेंट्स, यू आर द स्टिमुलेटर्स ऑफ द टीचर। आप खुद जब स्टूडेंट टीचर्स को मजबूर करेंगे कि भाई पढ़ने के लिए जाएँ, तो तब वो आपको पढ़ के खुद फिर आपको पढ़ाएगा। और 1-2 चीज़ें और जबकि मैं आपके साथ क्लास में शेयर करता रहता हूँ। दुनियावी लेवल में इंसान आगे तो बढ़ता रहता है, जो मेरा मानना है और जो मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स जहाँ पे भी जाएं अपनी दीन की खिदमत भी सरअंजाम दें। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है सब जानते हैं, सब जानते हैं। मेरे ख्याल से कोई बच्चा नहीं है, कोई इमेच्योर इस चीज़ से नहीं है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। अल्लाह ने हमें पैदा किया किस लिए? अपनी इबादत के लिए। तो दीन की खिदमत भी करते रहें, अपनी एजुकेशन बढ़ाते रहें। जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ रही है, अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाने के साथ साथ अपने दीन की खिदमत भी सरअंजाम देते हैं। मेरे ख्याल में हमारे सेमेस्टर 6 ही रह गया एट द एंड। और जो मोटिवेशन फैक्टर था, जो ट्रिगिंग फैक्टर था, वो मार्क्स का चक्कर है शायद, इसलिए सारे बैठे हुए हैं, वरना शायद सारे चले जाते हैं। क्या ख्याल है? लेकिन मैं कुछ जो है इनसाइट शेयर करना चाहूँगा। टिल दैट आई हैव नोटिस्ड सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग दैट प्रोग्राम। मिस प्लीज़। और कुछ मिस भी आपसे अपने पॉइंट शेयर करेंगी, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम यू गाइज एज वेल। तो जिस तरह एक टीचर पहले गई, उन्होंने बताया कि भाई यू आर द जीनियस, ठीक है, तो वो कैरेक्टर में नज़र आती हैं चीज़ें। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आपकी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, इन्हांस हो रही है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि आप एज से बड़े हो रहे हैं, फिजिकली बड़े हो रहे हैं, बट मेंटली कितना ग्रो कर रहे हैं। टास्क शेयर किया गया आपसे, बच्चों ने उस पर काम किया और एक्सीलेंट, मतलब बेहतरीन अंदाज में डिलीवर किया।
कुछ लोगों ने लेट चीज़ें शुरू की, वो फिर यहाँ उनकी चीज़ें आपको नज़र आई हैं स्टेज पे, ठीक है। कुछ स्टेज फियर था क्योंकि मुझसे चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हुई थी कुछ बच्चों की, ऐसा ही है। तो वो फिर थोड़ी सी हेजिटेशन नज़र आई, यहाँ पे आके कोलैप्स वाला जो है ना वो सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो ये इसलिए कि वो कुछ हेजिटेशन थी जो कि हमसे शेयर नहीं की गई थी, तो जो कि फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम कर रही थी, समझ में आ रही। तो जो टीचर होता है, फॉर एग्जांपल जो हम BS लेवल की जो स्टडीज़ है उनको अडल्ट लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ जस्ट जो है ना आपको गाइडेंस दी जाती है, रेस्ट ऑफ द जो थिंग्स होती हैं वो आपने करनी होती हैं। आप कुछ लीज लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम वीडियोस की बात करते हैं दिस एंड दैट, तो हम कहते हैं थोड़ा सा ऐसे कर लो, ठीक है। तो हम उसको समझ रहे होते हैं, ठीक है, कि यार इसको कैसा होना चाहिए, बिकॉज वी हैव द सेम स्टेज जैसे आप लोग अभी हैं, हम ये चीज़ करके आए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक टॉपिक बताया इन बच्चों को ड्रग एडिक्शन का, दैट वाज माय चॉइस, ठीक है, मैंने बच्चों के साथ शेयर किया। 11 आवर पे उन्होंने रेडी किया, मैं उसकी पिक्चर देख चुका था, ठीक है, और बहुत बेहतरीन पिक्चर में देख चुका था। तो उन बच्चों ने उसको उतना ही जो है ना बेहतरीन तरीके से जो है पेश किया। और कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं हर एक के अंदर मौजूद हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, जैसे इसने नाम लिया, क्या नाम है इसका, शानजा का, ईमान का, ठीक है, और बुशरा। तो इन्होंने क्या अच्छा डिलीवर किया, कम्युनिकेट किया अच्छा, स्टूडेंट्स ने, मेल ने भी बहुत अच्छा आके डिलीवर किया। एक जनरल कह रहा हूँ कि कुछ के पास स्पोकन पावर होती है, ठीक है, कुछ के पास एक्टिंग स्किल्स होती हैं कि वो आके डेमोन्स्ट्रेट अच्छा करते हैं, ठीक है, कुछ डोमिनेट करते हैं आगे। मतलब हर एक जो है ना पर्सन के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी होती है, कोई ना कोई हिडन और पोटेंशियल जो है ना टैलेंट होता है। तो हम जो स्टेज सेट करते हैं या हम जो एज अ गाइडर हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ से आपको एक्सपोज करते हैं, देन यू गेट टू नो कि आपका विल पावर क्या है, समझ में आ रही बात। उसके बिहाफ पे जो है फिर आप अपनी चीज़ें जो अपना फ्यूचर है या अपने आने वाले इवेंट से प्लान करते हैं। जैसे हम बात करें, कहाँ गया वो अनिल एंड सत्तार कहाँ है, मेरे ख्याल में शायद, हाँ, तो एक्सीलेंट, मतलब इनका जो एक्ट करने का जो तरीका था, मेरे पास कोई बड़ा इनाम तो नहीं है इनके लिए, लेकिन 2 छोटे छोटे नोट हैं। आई होप जो है ना आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो दैट इज़ गिफ्ट फॉर माई सेल्फ, फॉर बोथ ऑफ यू, प्लीज़ कम। अच्छा, और मैं फर्दर ऐड करना चाहूँ कि हमने इनके नाम जो है आगे प्रिंसिपल को फॉरवर्ड किए हैं फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, ठीक है जी। तो वो भी इंशाल्लाह सर्टिफिकेट की सूरत में इनको मिलेंगे। थ्रू आउट कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जहाँ पे इन दोनों की पार्टिसिपेशन ना हो। कम थैंक यू सर। फिर मैंने ऑटोग्राफ दिया, इसको शेयर करना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और ये डेडिकेशन देखें, आपके जो स्पार्किंग चीज़ें थी, लोगों को मजबूर किया उसने आने के ऊपर। HR से लोग आगे जब चीज़ों को देखा। अच्छा, एक और चीज़ सुन लें, बैठ जाए बेटा। शुरू में जब आपने स्टार्ट किया और जब हम तक चीज़ें लेके चलते, और दो हम 2 हफ्ते से प्रोग्राम को लेके चल रहे थे, लेकिन एक ट्रिगर जो है अभी तक जहन के अंदर था, मतलब जो प्रॉब्लम जो हर्डल कर रही थी कि चीज़ें अलाइन थी, नहीं नज़र आ रही थी, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी अलाइन नज़र नहीं आ रही थी। तो मैनेजमेंट भी थोड़ा सा इतना खास जो है ना वो इंटरेस्ट होनी है, तो कोई बैठा तो नहीं मैनेजमेंट वाला, खैर मैं ऐसे जनरल शेयर करना चाह रहा हूँ। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए HR का डायरेक्टर यहाँ पे आया, उनको रिपोर्ट गई है तो वो हैं। इस ऑल दो प्रिंसिपल वाज नॉट इन दैट मूड कि वो किसी को बुलाते, क्योंकि दे वर नॉट श्योर कि आप कैसा करेंगे, सही है, लेकिन आपने मजबूर किया उनको। दैट इज़ योर गुड थिंग कि आपने उनको ऐसा फैक्टर आपने शो किया कि वो आने में मजबूर हो गए। ऑल दो फिर उन्होंने आके आपसे गॉसिप वगैरह की। दैट इज़ समथिंग जो हमने दिखाना था बेसिकली, कि यार यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, वो भी इसके पास भी इतना टैलेंट है, जो कोई सोचता है कि भाई MBBS वाले के पास है या कोई फलाने के पास है, दूसरे के पास है, ये भी बच्चा उसी लेवल का। सिर्फ इसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत, थोड़ा गाइड करने की ज़रूरत है। बाकी आपने जो पेश किया, दैट वाज रिमार्केबल, ट्रेमेंडस। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों को मुबारक हो, आपका इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, इसके लिए क्लैप करें। दूसरी ये बात कि कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी डिस्टर्बेंस पेश कर रही थी। जिन्होंने तो हमसे कम्युनिकेट किया उनका तो बेस्ट गया है, और जिन्होंने खुद से प्रिपरेशन किए वो भी बेस्ट है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद भी देखनी चाहिए, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप कितने मैनेजेबल हैं। आपको पता है कुछ लोग हैं जिनका इवेंट है वो बस एट द एंड आए हैं और सेटअप कर लिया, ठीक है, वो भी उनकी विल पावर है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ प्लेस ऐसे थे जिस पे आपका बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर नहीं थी। ठीक, एक चीज़ मैं सिर्फ बताऊंगी कि एनवायरमेंटल फैक्टर में वो फैक्टर क्या था। आप लोगों ने कभी इस पे नोट किया है? एनवायरमेंटल वाला जो रोल प्ले हुआ उसमें फैक्टर कौन सा था, उस पे इफेक्ट कौन सा हुआ, उस पे क्या इफेक्ट था उसका? हैं? सेंसरी, तो उसको आप पहले सिम्टम्स वगैरह दिखाओ ना उसके। मैम सिम्टम्स वही थे जो ठीक है, मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हुई, ठीक है, उसका बिहेवियर, उसका आप डिसऑर्डर की वजह से वो स्ट्रेस। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको आप और बेहतर कर सकते थे। मैं आप लोगों को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों की लर्निंग फेज़ है ये, ठीक है, ताकि आप आगे जाकर और बेहतर कर सको। तो आज के लिए इतना ही है। अब आपको पता लग गया होगा कि मेंटल हेल्थ जो है वो खुश्क सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, हर चीज़ में मेंटल हेल्थ है। आप कोई वीडियो देखते हो, कोई मूवी देखते हो, आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर, कोई ना कोई मेंटल इलनेस वहाँ पर नज़र आ जाती है, ठीक है। थैंक यू।